I feel empowered only if I am able to empower my tribe. I personally feel that education is an absolute tool to empower women. It will bridge all the gaps from this generation to the next. Women deserve equal opportunities in every field. We can make them empowered by very simple acts. How? Give them respect, honor, and recognition. And that starts from your very homes. Let us envision to see more of Mother Teresa's, Savitribai Phule's, Kamala Harris, and Mary Com's. We have the strength to do it, individually and institutionally both. Let's pledge to make this planet more women friendly. Happy International Women's Day. A very happy Women's Day to all the women out there. For me, women empowerment means being self-reliant, independent, and being accountable for whatever she does. Now comes the question of how to empower the woman. The very first step for women empowerment is the education. It will not only give them knowledge, it will also boost their courage and confidence. At the same time, they will also learn and will have a different perspective of their surroundings. They will start asking the questions like why and what. So, all the brave girl, happy Women's Day to all of you. So, be brave and enlighten this world with your knowledge and wisdom. We are celebrating Women's Day. For me, every day is Women's Day. We are celebrating womanhood. कोई एक दिन नारी दिवस के रूप में मनाया नहीं जा सकता क्योंकि नारी दिवस तो हर रोज होता है. हमारा सुबह शुरू होता है नारी से, खत्म होता है रात नारी से. आप अगर हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को भी देखें, हमारे गॉडेस एंड गॉड्स को देखें, तो पावर जो है वो सिंबलाइज होता है नारी से. देवी जो है वो शक्ति का रूप है. तो वुमेन्स आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. आज के समय की जो ज़रूरत है वो है कि हम पुरुषों को एम्पावर करें. Woman empowerment to me is a society where women have agency over their bodies, where they do not have to choose between a good career and a good marriage because they are deserving of both, where topics like consent, marital rape, and menstrual hygiene are freely discussed, where they are seen in all their light, where they do not have to have the support of a father, brother, husband to venture out of the house, where gender roles are not fixed and men share the load in domestic chores as well, and where most importantly women support each other and do not bring each other down. Thank you. Heartiest greetings from Dubale School, Calcutta Extension on this Women's Day. If we must celebrate a day for women, let us celebrate freedom from stereotypes, from expectations, from sacrifices. Stop congratulating women for being the secret behind a successful man. Start saluting them for their success. Stop saying that the mother is sacred for all the sacrifices she does. Rather, reduce her sacrifices. Stop telling women they are beautiful. Try telling them it is not important to be beautiful. Stop praising her role as a mother, wife, daughter, sister. Celebrate her as an individual. Stop justifying her necessity to multitask. Stop making her look at herself through a conveniently male viewpoint. Let her be imperfect, flabby, fierce, adventurous, lazy, boorish, ungroomed, impractical, but happy. महिलाओं के संघर्ष को गति देने का नाम ही नारी सशक्तिकरण है. आज की नारी बेखौफ है, स्वतंत्र है, और आज की नारी वो नहीं है कि चार दीवारी के अंदर है और सिर्फ उसका काम चूल्हे चौके तक सीमित है. पर एक तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि नारी सशक्तिकरण का मतलब केवल हमें पुरुषों से ही कम्पीट नहीं करना, मुकाबला नहीं करना. उसके लिए जरूरत है हमें अपने आप को एम्पावर करना है, अपने आप को उठाना है और एक ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है. वो है नारी सशक्तिकरण. नारी वह शक्ति है जो समाज और परिवार दोनों को बराबर लेकर चलती है. वह कभी भी किसी भी पलड़े को कमज़ोर नहीं छोड़ती. वह सभी को बराबर लेकर चलती है. अगर महिलाएं काम कर रही हैं या वह घर पे हैं तो वो दोनों ही पहलू से अपने आप को उभार लेती हैं. अब हमें यह देखना है कि महिलाएं जो हैं वो कैसे आजकल की नारियों को, आजकल की लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं. उसके लिए सबसे पहले तो हमें बच्चियों का पालन पोषण अच्छे से करना होगा, और दूसरा उनके खान पान, उनके वातावरण, उनके पहनावा, ये सब चीज़ें अच्छी प्रकार से उनको देनी होंगी ताकि उन्हें भी आगे जाकर यह ना लगे कि वह किसी से कम है. वह वो सब चीज़ें कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है. धन्यवाद. Women empowerment means giving the space and freedom to the women of the society so that they can make their own decisions. The male counterpart should not
say that I let my female counterpart go to school, office, or work. A woman can be a CEO alone, a mother alone, or both a CEO or mother. It is her decision, her choice to live her life on her own terms. के लिए सभी दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महिला अपने सभी निर्णय और अपने सभी कार्य स्वयं कर सकती है। वह आज की महिलाएं इतनी सक्षम है कि वह सभी चीज़ों को समझकर अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से कर सकती है। घर में किसी एक बच्ची को पढ़ाएं तो वो यह बिल्कुल संभव है कि वह सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगी, उनका ध्यान रख पाएगी और उनका अच्छे से ख्याल रख पाएगी। महिलाओं को किसी की भी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम यही अधिकार महिलाओं को दे दें तो इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण कुछ और नहीं हो सकता। थैंक यू। नारी सशक्तिकरण का अभिप्राय है कि नारी को जागरूक करना। नारी जो समाज में, घरों में डर डर के कदम रखती हैं। कुछ ही नारियां ऐसी हैं जो ऐसा करने से बहुत डरती हैं कि वो समाज में आगे नहीं बढ़ती हैं और समाज के कुछ रूढ़िवादियों से डर डर के वे अपना निर्णय खुद भी नहीं ले सकती हैं। हम उन नारियों को जागरूक करना चाहते हैं और हमें उन्हें सशक्त बनाना है। धन्यवाद। महिला को सशक्त करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है हम उन्हें उनके अधिकारों के बारे में उचित जानकारी दें एवं उन्हें उचित पोषण, शिक्षा मुहैया कराएं। साथ ही हमें महिलाओं को यह भी अधिकार देना चाहिए कि वो अपने जीवन में जिस राह पे जाना चाहती हैं वो उस राह को चुन सकें। हमें समाज में लिंग भेद नहीं करना चाहिए कि हम लड़कों को ऊंचा, लड़कियों को नीचा माने। हमें दोनों में समानता बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद। इन आवर सोसाइटी वुमेन्स को वर्शिप एज अ गॉडेस, हम उनकी पूजा करते हैं, बट दे डोंट हैव राइट टू टेक देयर डिसीजन देमसेल्फ। व्हाट इज दिस? They are facing so many challenges throughout the world. They are facing domestic violence, gender discrimination, and 3 talaq, and so many problems they are facing all around the world. What we can do? First of all, we should educate them. If we will educate them, they will come to know what their rights. They will know that I have a power to take my decision myself. They are equal to everybody else, but the thing is कि they don't know कि what they have what position they have, उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या है वो उनके पास है, बट उनको वो उजागर नहीं कर पाती क्योंकि हमारे जो डोमिनेंट सोसाइटी है, they always say that you are a girl and you have to do all household chores, not take decision. तो हमें जो है ये जो हमारे थिंकिंग है इससे बाहर निकलना होगा और उन्हें एक नया रास्ता देना होगा, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। मैटर ये करती है कि आप यूनिक हो एज ए पर्सन एंड यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डू। थैंक यू। मैं खुद कई परिस्थितियाँ मेरे सामने ऐसी आई, कई मुश्किलें मेरे सामने ऐसी आई कि आज मैं ज़िंदगी में अकेले ही उन सभी समस्याओं का सामना कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों का लालन पालन, उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारियाँ अकेले निभा रही हूँ और इसमें मेरे परिवार, मेरे सास ससुर सभी ने मुझे पूरा सहयोग दिया और अपना बेटा ना होने पर भी उन्होंने मुझे एक बेटे की तरह माना और आज मुझे घर से बाहर जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ कमाने के लिए भेजा। मैं सभी महिलाओं से इतना आग्रह करूंगी और उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने पावरमेंट को पहचानिए। आप भी अन्य महिलाओं की तरह कभी भी कोई भी कष्ट आए ज़िंदगी में, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, उन परिस्थितियों में आगे बढ़ना सीखें क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे ऊपर निर्भर करती हैं कि हम उनका सामना कैसे करें। धन्यवाद। और मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस ही बताती हूँ कि महिलाओं को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ क्योंकि महिलाएं ही हैं जो बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं। अगर आज मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं पढ़ाते या सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाती और आज मैं इस लायक बन चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स भी का सपोर्ट है, मेरे ससुराल वालों को भी काफ़ी सपोर्ट है और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण खुद कर रही हूँ और मेरे बच्चे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे भी आगे बढ़े और मैं लोगों को यही प्रेरणा देना चाहूँगी
कि आप सभी अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि जब बेटियां पढ़ेंगी तो आगे दो परिवारों का बहुत ज़्यादा विकास होगा। थैंक यू।